नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी, यहाँ से भी क्वेश्चन मेन एग्जाम वगैरह में भी आता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, इंटरप्रिटेशन पे जो है नेसेसरी पार्टी प्रोविजो में यूज लिया गया। क्या मीनिंग है नेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी का? अ नेसेसरी पार्टी इज द वन whose presence, necessary party is the one whose presence is indispensable to the constitution of the suit, against whom the relief is sought, and without whom no effective order or decree can be passed. Without whom no effective decree or order can be passed. In absence of the necessary party, no effective, अच्छा ये बाद में दे रखा है, no effective decree can be passed. What is the definition or meaning of the necessary party? A necessary party is one whose presence is indispensable to the constitution of the suit, means necessary or essential to the constitution of the suit, and against whom the relief is sought, and without whom, in the absence of whom, no effective decree or order can be passed by the court. And what is the meaning of the proper party? Proper party is one in whose absence a decree or effective order can be passed. An effective decree or order can be passed, but whose presence is required for complete and final decision or adjudication on the question involved in the suit. What is the definition or meaning of the proper party? Though whose presence is not essential for the constitution of the suit, in whose absence the trial may be conducted, suit may be tried, or effective decree or order can be passed in absence of that party, but if who present before the court, it assists the court for the effective or complete adjudication of the matter. There are two tests for determining the question whether a particular party is a necessary party to a proceeding or not. Whether a person is necessary party or not, there are two tests. First test is there must be some right to relief against a such party in respect of the matter involved in the proceeding in question, and it should not be possible to pass an effective decree in absence of the such party. These are the two tests of the person is a necessary party or not. There must be some right to relief against such party in respect of the matter involved in the proceeding in question, and another thing, it should not be possible to pass an effective decree or order in the absence of the such party. If both the tests satisfied, the concerned person is considered a necessary party of the suit. पक्षकारों का असंयोजन और कुसंयोजन का प्रभाव क्या होगा? हमने पढ़ा है ऑर्डर 1 रूल 9 में कि सामान्यतः असंयोजन और कुसंयोजन के प्रभाव क्या है? वाद विफल नहीं होगा। इनके कारण जो है केवल पक्षकारों के असंयोजन है या कुसंयोजन के कारण वाद विफल नहीं होगा या वाद का खारिज करने का आधार नहीं होगा, परंतु अब आवश्यक पक्षकार का असंयोजन किया गया हो तो उस केस में ऑर्डर 1 रूल 9 लागू नहीं होगा, मीन्स वाद विफल हो जाएगा केवल इस तकनीकी आधार पर। यदि नेसेसरी पार्टी का नॉन जॉइंडर है, आवश्यक पक्षकार का असंयोजन है। आवश्यक पक्षकार हम किसे कहेंगे? ऐसा पक्षकार जिसकी उपस्थिति वाद के लिए क्या है? अनिवार्य है, आवश्यक ही नहीं, केवल नेसेसरी वाली बात नहीं है, एसेंशियल है वाद के लिए, जो है जिसको संयोजित किए बिना जो है वाद नहीं चल सकता, अंतिम आदेश या डिक्री जो है वो न्यायालय पारित नहीं कर सकता, और जिसके विरुद्ध अनुतोष भी चाहा गया है। 2-3 बातें। पहली बात तो उसकी उपस्थिति आवश्यक है वाद के संचालन के लिए, दूसरा उसको संयोजित किए बिना वाद चल ही नहीं सकता, और तीसरा जो है कोर्ट इफेक्टिव डिक्री या ऑर्डर जो है वो पारित है वो नहीं करता, और जिसके विरुद्ध कुछ न कुछ अनुतोष भी जो है वो चाहा गया, तो वो पक्षकार क्या कहलाएगा? वो नेसेसरी पार्टी या आवश्यक पक्षकार है वो कहलाएगा। क्या कोई विशिष्ट पक्षकार आवश्यक पक्षकार है या नहीं, या विशिष्ट व्यक्ति जो है, क्या कोई व्यक्ति जो है आवश्यक पक्षकार है या नहीं, इस प्रश्न को अवधारित करने के लिए 2 कसौटियां हैं। पहला, प्रश्नगत कार्रवाई में अंतर्वलित मामले के संबंध में उस पक्षकार के विरुद्ध कोई अनुतोष पाने का अधिकार हो, और दूसरा, ऐसे पक्षकार की अनुपस्थिति में प्रभावी डिक्री जो है वो पारित करना संभव नहीं है। यदि दोनों कसौटियां है वो कंप्लीट होती है तो ऐसा व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा? वाद का आवश्यक पक्षकार है वो कहलाएगा। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द नेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी? अ नेसेसरी पार्टी इज वन इन हुज एब्सेंस नो डिक्री or order can be made effectively, and proper party, a proper party is one in whose absence decree or order can be passed or made,
Second difference between the necessary party or proper party, presence before the court is essential for determination of all the issues involved in the suit and to settle the dispute finally. Though presence before the court in case of the proper party, the presence before the court is not essential, yet it may be proper that they also be present before the court and adjudication on the issues and settlement of the dispute is done in their presence. In absence of the necessary party, suit is defective, and if defect has not been noticed and time granted by the court for the removal of the defect and for impleading the necessary party, the same is not done, the suit is defective and may be thrown away. Thrown away means the suit may be dismissed on this technical ground in the absence of the necessary party. Whereas, in case of the absence of the proper party, the suit is not considered defective and cannot be thrown away or dismissed on this the absence of the proper party. आवश्यक पक्षकार और उचित पक्षकार के बीच में क्या अंतर है, ऐसा मुख्य परीक्षा में प्रश्न आपके सामने शॉर्ट नोट वगैरह में 3 मार्क्स 4 मार्क्स आदि में पूछा जा सकता है। क्या है आवश्यक पक्षकार और उचित पक्षकार के बीच अंतर? ऐसा पक्षकार जिसकी अनुपस्थिति में प्रभावी डिक्री या आदेश नहीं पारित किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? आवश्यक पक्षकार कहलाता है। और उचित पक्षकार वह पक्षकार होता है जिसकी अनुपस्थिति में प्रभावी डिक्री या आदेश पारित किया जा सकता है। दूसरा डिफरेंस, ऐसे पक्षकार की न्यायालय में उपस्थिति वाद में अंतर्वलित सभी विवादकों को अवधारित करने के लिए और विवाद का अंतिम रूप से निपटारा करने के लिए आवश्यक होती है, जबकि उचित पक्षकार के केस में उचित पक्षकार की दशा में न्यायालय के समक्ष उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, परंतु प्रभावी और पूर्ण न्याय निर्णय करने में उनकी उपस्थिति से न्यायालय को क्या मिलती है? सहायता है, वो मिलती है, तो वो पक्षकार उचित पक्षकार है। और तीसरा, आवश्यक पक्षकार की अनुपस्थिति में वाद त्रुटि युक्त होता है और ऐसी त्रुटि जानकारी में आने पर और न्यायालय द्वारा प्रदत्त समय में ऐसी त्रुटि को हटाना होगा और आवश्यक पक्षकार को संयोजित करना होगा, और ऐसा नहीं करने पर वाद क्या होगा? वाद विफल होगा या वाद खारिज किया जाएगा इस आधार पर। जबकि उचित पक्षकार की अनुपस्थिति की दशा में वाद जो है वो त्रुटिपूर्ण नहीं होता है और न ही वाद जो है इस आधार पर खारिज किया जाएगा। तो ये जो है वो 3 डिफरेंस आप आवश्यक पक्षकार और उचित पक्षकार के बीच में नोट कर सकते हैं। वेयर अ पर्सन हु इज अ नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी, वेयर अ पर्सन हु इज अ नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी टू द सूट हैज नॉट बीन जॉइन एज अ पार्टी टू द सूट, इट इज द केस ऑफ नॉन जॉइंडर. इट इज नोन एज नॉन जॉइंडर ऑफ द पार्टी. वेयर अ पर्सन either who is necessary or proper party and had not been impleaded or joined as a party to the suit, it is the case of the non-joinder of the parties. And if 2 or more persons are joined as plaintiff or defendant in one suit in contravention of the order first and rule third respectively, and they are neither necessary party or nor proper party, it is the case of the misjoinder of the parties. It is known as or said to be misjoinder of the parties. What is the general rule? A suit cannot be dismissed or shall not be. In Bail Act, what terminology is used? Shall not defeated. A suit shall not be dismissed or defeated only on the ground of the non-joinder or misjoinder of the parties. Court may in every suit deal with the matter in controversy so far as regards the rights and interest of the parties actually before it or actually present before it, actually made the party in that suit. A decree passed by a competent court on the merits will not be set aside on the ground of misjoinder of the defendant or misdescription of the defendant. This rule does not apply in case of the non-joinder of the necessary party, means in case of the non-joinder of the necessary party, suit shall be defeated or suit shall be dismissed only on this technical ground. असंयोजन हम किसे कहेंगे या पक्षकारों का असंयोजन किसे कहेंगे? वाद के आवश्यक और उचित पक्षकार को वाद में संयोजित नहीं करना या वाद में पक्षकार नहीं बनाना। जो है कोई व्यक्ति जो है वो वाद का या तो आवश्यक पक्षकार था या उचित पक्षकार था, उसे पक्षकार के रूप में नहीं जोड़ा गया है, संयोजित नहीं किया गया है, तो ये क्या कहलाता है? ये पक्षकारों का असंयोजन कहलाता है। सिमिलरली कुसंयोजन किसे कहेंगे? अब वाद में आदेश 1 के नियम 1 और नियम 3 के उल्लंघन में वादी या प्रतिवादी के रूप में अनावश्यक व्यक्ति को पक्षकार के रूप में संयोजित कर लिया जाए,
तो वो क्या कहलाएगा, वो पक्षकारों का कुसंयोजन कहलाएगा। न तो उसके फेवर में कोई राइट टू रिलीफ था, न उसके अगेंस्ट राइट टू रिलीफ था। उस व्यक्ति को यदि पार्टी बना दिया गया है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के रूप में, तो ये क्या है, ये मिसजेंडर ऑफ द पार्टी है। क्या है, तो वो गलत व्यक्ति को जो है वो पक्षकार है वो बना दिया गया है, जो पक्षकार बनने है वो लायक नहीं था, तो ये पक्षकारों का कुसंयोजन या मिसजेंडर ऑफ पार्टी है वो कहलाता है। सामान्य नियम क्या है, पक्षकारों के असंयोजन और कुसंयोजन के प्रभाव के बारे में हमने आदेश 1 नियम 9 में पढ़ा है कि पक्षकारों के असंयोजन या कुसंयोजन के आधार पर वाद जो है वो सामान्यतः खारिज नहीं किया जाएगा या सामान्यतः वाद जो है वो विफल नहीं होगा। बेरेक्ट वाला शब्द भी याद रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में जो आएगा वो बेरेक्ट, वो इसका दूसरा सेकेंडरी मीनिंग है। विफल है वो नहीं होगा, इसका मतलब खारिज नहीं किया जाएगा। बट याद आपको बेरेक्ट में दी गई बात है, डिफिट नहीं होगा, सेल नॉट बी डिफिटेड, या विफल नहीं होगा, इसका मतलब खारिज नहीं होगा। न्यायालय प्रत्येक वाद में उसके समक्ष जो विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकार और दायित्व है उनको अवधारित है वो करता है। सक्षम न्यायालय के द्वारा गुणावगुण पर पारित डिग्री प्रतिवादी के गलत विवरण के आधार पर जो है वो अपास्त नहीं की जा सकती। प्रतिवादी का कोई विवरण गलत दे रखा था, क्या केवल इस आधार पर जो है एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने मेरिट पे डिग्री पारित की है, पूरी एविडेंस एप्रिशिएट आदि है वो करके दोनों पक्षकारों को सुनकर साक्ष्य है वो देखकर डिग्री पारित की, क्या केवल इस आधार पर वो डिग्री सेटिसाइड हो सकती है? नहीं हो सकती। हमने सेक्शन 99 में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? सेक्शन 99 ऑफ सीपीसी में वो पढ़ा है कि कोई ऐसी एरर, ऐसी कोई मिस्टेक, ऐसी कोई इरेगुलरिटी विच डज नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ द केस और जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, इट शैल नॉट बी अ ग्राउंड ऑफ रिवर्सल और वेरी और रिमांड द केस टू द ट्रायल कोर्ट। तो सेक्शन 99 से कंसिस्टेंट है, तो इस आधार पर अपीलेट कोर्ट उस डिग्री को अपास नहीं करेगा या उल्टेगा नहीं, फेरफार नहीं करेगा, रिमांड या प्रतिप्रेषित नहीं करेगा मामले को। यह सामान्य नियम जो है आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के मामले में जो है वो लागू नहीं होता है। सामान्य नियम आवश्यक पक्षकार के असंयोजन में लागू नहीं होता है, इसका मतलब क्या है? इसके आधार पर आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के आधार पर वाद खारिज किया जाएगा या वाद जो है वो क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। और विफल होने का मतलब क्या है? खारिज होने से। केवल इस आधार पर वाद जो है वो डिसमिस हो सकता है। पक्षकारों के संयोजन से रिलेटेड प्रोविजन जॉइंडर ऑफ पार्टीज के जो है डिटेल में प्रोविजन हमने रूल 1 to 7 नियम 1 से लेके और 7 तक ये सारे क्या थे? ये जॉइंडर ऑफ पार्टीज से रिलेटेड एबव प्रोविजन थे। रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट था, प्रतिनिधिवाद, ये भी पढ़ लिया। और मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर जो है ये वैसे रूल 9 में जो है वो कवर होता है। और कोर्ट के पास कुछ पावर है मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर के केस में। जो मिस जॉइंडर है उसको तो रिमूव करने का और नॉन जॉइंडर के केस में पार्टी बनाने की ये पावर कोर्ट की जो है वो रूल 10 में है वो दे रखी है। उदित नारायण सिंह, ये जजमेंट भी आपको याद रखना, कभी कभी ये वाला जजमेंट प्रीलिम्स के पेपर में पूछ लिया जाता है। उदित नारायण सिंह वर्सेस एडिशनल मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1963 सुप्रीम कोर्ट, एंड दिस जजमेंट और रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ऑन द डिफरेंस बिटवीन द नेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी। What are the differences? Difference between the proper and necessary parties. A necessary party is without whom no order can be made or effectively and presence is required, and proper party in whose absence effective judgment can be made but presence is required for complete and effective adjudication by the court. Necessary party is without whom no order can be made effectively and presence is essential, necessary, etc. for constitution of the suit, and proper party in whose absence effective decree or judgment order can be passed but presence is required for the complete and effective adjudication by the court. It assists the court for complete and effective adjudication of the matter. उदित नारायण सिंह बनाम एडिशनल मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1963 सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग जजमेंट है। आवश्यक पक्षकार और उचित पक्षकार के अंतर पर ऐसा प्रीलिम्स के पेपर में आपके सामने प्रश्न आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के अंदर जो है नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी को डिफरेंस को एक्सप्लेन किया है, या आवश्यक पक्षकार और उचित पक्षकार के अंतर के बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट का कौन सा लीडिंग जजमेंट है। एक ही उत्तर होगा, उदित नारायण सिंह वर्सेस एडिशनल मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1963 सुप्रीम कोर्ट। क्या अभी निर्धारित किया गया इस जजमेंट में? इस मामले में न्यायालय ने आवश्यक पक्षकार और उचित पक्षकार के अंतर को स्पष्ट करते हुए अभी निर्धारित किया
या आवश्यक पक्षकार, आवश्यक पक्षकार वह पक्षकार है उसके बिना प्रभावी आदेश या डिक्री नहीं पारित की जा सकती, या उसकी बिना का मतलब उसकी अनुपस्थिति में, उसकी अनुपस्थिति में जो है या उसको पक्षकार बनाए बिना जो है वो प्रभावी आदेश या डिक्री पारित नहीं किया जा सकता। और उसकी उपस्थिति जो है वो क्या है, वाद के लिए आवश्यक है, वाद के संचालन के लिए वो आवश्यक है। जबकि उचित पक्षकार वह पक्षकार है जिसकी अनुपस्थिति में प्रभावी डिक्री या आदेश पारित किया जा सकता है, परंतु उसकी उपस्थिति पूर्ण और प्रभावी न्याय निर्णय के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित है। प्रभावी डिक्री और आदेश जो है वो पारित हो सकता है उचित पक्षकार की अनुपस्थिति में, बट उसके उपस्थित होने से कोर्ट को मदद मिल रही है क्या करने में, उस मामले का पूर्ण और प्रभावी न्याय निर्णय करने में, उस मामले का पूर्ण और प्रभावी डिसाइड करने में कोर्ट को है वो हेल्प मिलती है उसकी प्रेजेंस से। ऐसा पक्षकार है वो क्या कहलाता है, उचित पक्षकार कहलाता है।